Hello friends. Now today we would like to think about the most IMP lecture. अगर मुझे पूछा जाए चैप्टर नंबर 3 का सबसे बेहतरीन जो जोन हो तो ये है। इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का जिसे कह सकते हैं लॉजिक है वो मेजर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, only one request from my side. Please analyze this video lecture, we can say that very carefully and with 100% concentration. ये लेक्चर को बार बार रिवाइज करके कंसेप्चुअल क्लियरेंस करना, क्योंकि ये अगर अपने दिमाग में आ गया तो समझ लो, आप समझो जो भी क्वेश्चन सोल्व करने वाले वो बहुत इजीली सोल्व कर दोगे। और मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसके कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गए मतलब इस क्वेश्चन पे आप समझ लो छा गए। तो फ्रेंड्स, without wasting time, we start the most timely lecture, current electricity, part 8a. You know that very well. We always now think about two parts from that very well last 2 to 3 lectures. Because of these two parts, you can easily analyze each and every part. Not we can say that in length, but in very short time. Anyway, so current electricity part 8a. It is, you can see, Kirchhoff's rule. I already written here JEE NEET special धूम टॉपिक किरचॉफ्स रूल। याद करो चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। जिस बंदों ने किरचॉफ्स रूल वहां पे अच्छी तरह पढ़ा होगा उसको इसमें बहुत ही मजा आएगा। कोई बोले मैं तो अभी लेक्चर देख रहा हूँ, तो वो अच्छी तरह ध्यान रखे। आज आप इसमें मास्टर बनने वाले हो, दैट्स माय गारंटी, डोंट वरी। इतना आज अच्छी तरह देख लो, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व करने वाले हो। सो बी अलर्ट। Kirchhoff's rule, then there are two Kirchhoff's rule, Kirchhoff's first law and Kirchhoff's second law. Today we would like to think about first of all first law and then second law. So Kirchhoff's rule, first law, it is also called KCL. You can see Kirchhoff's first law is also called KCL. KCL, that means current law. It is called Kirchhoff's current law. You can see it is also called junction rule. याद करो junction rule, capacitor and capacitance. So Kirchhoff first law is called KCL. It is also called junction rule, and it is only and only based on the law of conservation of charge. You know that very well. Charge is neither created nor destroyed. Very very important. So the law of conservation of charge, it is, we can say, the point. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, Kirchhoff first law represents blank law. It gives idea about the law of conservation of charge. So what is the, we can say that this law statement of the Kirchhoff's first law. So Kirchhoff's first law statement, the algebraic sum of all currents meeting at the junction is always zero. You know that very well. Junction, suppose this one is the point where you can see more than two conductors are meeting. The point at which more than two conductors are meeting, it is called junction. So here you can see this point O is called junction because here more than two conductors. Here I have represented 5 conductors. So this point is called junction because at this point O you can see more than two conductors are meeting. So algebraic sum of all currents meeting at the junction is always equal to 0. For example, if you think about, we can say that 1, 2, 3, 4 and 5 conducting wires. Suppose current passing through this wire 1 is I1, current passing through wire 2 it is I2, then here you can see that in third wire is I3, and you can see that in fourth wire is I4, while in fifth wire I5 you can see. So check the direction of these all currents. You can see I1 is already moving towards the junction. Similarly, if you think about I3, current passing through this third wire also moving towards the junction, and I4 you can see this fourth current also, that means the fourth wire current is also moving towards the junction. So these three currents I1, I3 and I4,
they all are moving towards the junction. That means these are the currents you can see that entering the junction. But you can see, if you observe very carefully, then these two currents I2 and I5, you can see these two currents are moving away from the junction. That means they are simply leaving the junction. So what is the, we can say that algebraic sum. Here we have to think about simply the sign convention. What's the sign convention? Very easy. Those currents which are moving towards the junction are considered positive, and those currents which are moving away from junction are considered negative. So here I2 and I5 are moving away from junction, so they are considered negative, and I1, I3 and I4 are moving towards the junction, so they are considered positive. कोई बोले सर ऐसा फिक्स? नो, इट डिपेंड्स अपॉन यू. इफ यू आर considering I1, I3, I4 negative, that means those currents which are moving towards the junction, entering the junction are negative, then automatically those currents which are moving away, leaving the junction are positive. तो मैंने जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट्स को पॉजिटिव लिया, तो जंक्शन से दूर जाने वाले करंट्स को मैंने नेगेटिव लिया. सो व्हाट इज द अलजेब्रिक सम? So if you think about I1 plus I3 plus I4, you can see here, if you representing very good manner, then I can write here I1 plus I3 plus I4. These all three currents are positive, but you can see I2 and I5 are negative. So minus I2 minus I5 is equal to 0. The algebraic sum of all currents meeting at the junction is always equal to 0. That means sigma I at this junction, I will write here point at junction, is equal to 0. You can see this is the mathematical form. You can also represent this law in other way, like total incoming current. You can see total incoming current at the junction is equal to total outgoing current, or I can say that leaving the junction, total outgoing current leaving the junction. So tell me, what is the total incoming current? Incoming current, ये हमने डिस्कस किया था, याद करो. Incoming current is equal to outgoing current. Incoming current, so I can write I1 plus I3 plus I4, because these three currents are already incoming the junction, is equal to current leaving the junction. What is the outgoing current? So I2 and I5. So you can see this is your simple point. अगर I2 I5 इस तरह है तो माइनस ही हो जाए. So this is your Kirchhoff's first law. It is also called KCL. It is also called junction rule. Don't worry, मगर इसका एक बहुत ही IMP MCQ पूछेंगे. First law, Kirchhoff's first law simply represents law of conservation of charge. That means charge is neither created nor destroyed. You know that. And what is the mathematical form? This is the mathematical form, but what's the statement? The algebraic sum of all currents meeting at the junction is always 0, or the total incoming current at the junction always equal to current leaving the junction or outgoing current at the junction. You can from the junction. So most IMP, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर इसकी एप्लीकेशन है वो बहुत ही फेमस. जंक्शन रूल है, दैट मीन्स इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग. हमने ऑलरेडी केसीएल की तरह ही, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स में डिस्कस किया था. आज भी अपन लोगों को इसमें मास्टरी लेने की है, तो अपन लोग अब इसके रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल शुरू करते हैं. प्योर JEE नीट टेक्स्ट बुक भी इसमें बीच में आ जाएगी, इसलिए जरा ध्यान रखना. मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूँ और इसका आंसर आपको देना है. जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक. You can see this type of circuit is given. Okay, so this is your question. Find the value of I. What is the value of I? Check it.
your target to find current. So once again here we would like to apply Kirchhoff's first law or junction rule. You can see that as per Kirchhoff's first law, incoming current, first of all I would like to find total incoming current in a given circuit. You know that CKT is the circuit. So what is the total incoming current? Total incoming current in the circuit, so 12 एम्पियर, ये भी देखो एंट्री ले रहा है 3 एम्पियर, ये भी एंट्री ले रहा है 2 एम्पियर. So 12 plus 3 plus 2, that means 12 plus 3 15, 17 ampere. You can see 17 ampere current simply incoming the circuit, so is equal to outgoing current in the circuit or from the circuit. So outgoing current only one, yeah. So as per junction rule or as per KFL, as per Kirchhoff's first law, incoming is equal to outgoing. मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ. Incoming current in the circuit is equal to outgoing current in the circuit. So what is the incoming current circuit? Incoming current in the circuit, it is 7 ampere and outgoing it is I. So obviously I is equal to 17 ampere. This is your answer. तो ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं. जस्ट एनालाइज. ओके, अब इसके जैसे एक और डिस्कस करते हैं. सो ट्राई टू सॉल्व इट. नाउ यू नो दैट वेरी वेल. वंस अगेन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, वंस अगेन मैं रिवाइज करवाता हूं इतने पॉइंट्स. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, simply representation of law of conservation of charge. What is the statement? The algebraic sum of all currents meeting at the junction always equal to 0, or the total incoming current at the junction is equal to total outgoing current, or I can say the total current leaving the junction. Most IMP, a charge always get conserved. It is also called Kirchhoff's current law. It is also called junction rule. Most important. And now we would like to apply the same concept but for different types of न्यूमेरिकल और क्वेश्चन. जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. अब मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो ट्राई करनी है. दिखने में टिपिकल है. Okay, this type of resistors given. Value of resistors, no idea. Here you can see that check the direction of current 15 ampere. This is I2. This is 3 ampere. This is I3, I4, I1. 4 currents. And 4 currents are unknown. We have no idea about I2, I3, I4 and I1. But few other values given. Okay. So find the values of I1, I2, I3 and I4. Start. Think about it. In this type of question you have to think about this direction of current. Direction of current play very important role. You can see. ये डायरेक्शन चेक करो. देखो मैं वापस थोड़ा हाईलाइट करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. Okay friends, your target to find I1, I2, I3, I4. So first of all think about junction because we are discussing junction rule. So ये सब junction है. देखो ये 4 junction है. जो भी घटनाएं घटेगी वो जंक्शन के पास ही घटेगी. याद रखना. तो पहला जंक्शन देखते हैं. ये रहा. Suppose this is your, we can say that point A. तो यहाँ पे कितना करंट आ रहा है? You can see 15 ampere. Out of 15 ampere, 8 ampere current flows in, we can say the down direction. So obviously what amount of current out of 15, 8 ampere, so here 7 ampere. So 7 ampere है वो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि इधर ले आते हैं. You can see. So at this point B 7 ampere और यहाँ से 3 ampere. 7 plus 3 get combined at point B. So it becomes, you can see 7 plus 3. That means 10 ampere. So what is your I2? I2 already 7 ampere. You can see. What is your I3? I3 already 10 ampere. Now at this point C, here 10 ampere and I4. But we have no idea about I4. So we can find I4. Suppose at this point D, what is the current available at point D? It is 8 ampere.
सो 8 एम्पियर में से अब देखो 5 एम्पियर इस साइड जा रहा है, जंक्शन डी के पास टोटल 8 एम्पियर करंट अवेलेबल है। आउट ऑफ दिस 8 एम्पियर 5 ampere current flows in down direction, so obviously here 3 ampere, so 3 ampere plus 10 ampere, this both get combined at this C, so it becomes 13 ampere. So what is your I1? So you can see I1 13 ampere, what is your I2? 7 ampere, what is your I3? 10 ampere, and what is your I4? It is simply 3 ampere. Just check it. So this is simply KFL. कोई बोले मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है इसलिए अपन लोग अब सेगमेंट थोड़ा चेंज करते हैं। ये मजा ऐसा ही है मगर कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो बराबर, क्योंकि अभी कंसेप्चुअली और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये लॉकडाउन सिनेरियो, लोग अब राह देख रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम से बैठे हैं, अब किसी को बाहर निकलने का एहसास हो रहा है, मिलने जाना, ये वो सब आप समझ रहे हो। मगर दोस्तों ये सब कुछ बहुत ही टिपिकल और डिफिकल्ट टाइम है, तो अभी अपने को इसी तरह पढ़ना है और ऐसे ही पढ़ना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है, काफ़ी टाइम मिल रहा है। तो अब अपन लोग लेवल थोड़ा चेंज करते हैं, दैट मीन्स अब मैं जंक्शन रूल का एक मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन शुरू करता हूँ, यानी कि जंक्शन रूल KFL यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ, KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करके हम कुछ बेहतरीन सर्किट को क्रैक करेंगे। मुझे इसमें मास्टरी चाहिए, क्यों मास्टरी चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा और आ भी जाएगी, डोंट वरी। मैं जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह समझो। आज अपना बेसिक पॉइंट ये है कि ये जो डिपार्टमेंट है उसमें जबरदस्त लेवल लेना। तो मैं पहला क्वेश्चन फेंक रहा हूँ, जरा देखो। अब ये क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाऊंगा, फिर उसके जैसा एक और मैं सोल्व करवाऊंगा, फिर आपको 2 क्वेश्चन अपने आप इधर ही ट्राई करनी है। चलो, सो जस्ट चेक इट। This type of circuit given, there is 10 volt, there is I think 30 volt, 3 ohm, 6 ohm, 3 ohm. Okay, so what's your target? क्वेश्चन बहुत ही धीरे से पूछेंगे। फाइंड करंट पासिंग थ्रू, इधर सपोज ABCD, तो BD ब्रांच, पासिंग थ्रू BD ब्रांच। चलो ये करंट फाइंड करना है, इस ब्रांच में से कितना है, 3 ओम में से कितना करंट पास। सो दिस इज योर टारगेट। सॉरी, आई कैन से दैट थिंक अबाउट इट एंड अप्लाई लॉजिक। तो सॉरी, क्योंकि ये तो मुझे ही सिखाने का था, कोई बोले अभी डायरेक्ट सिखाए बिना लॉजिक, तो देखो अभी शुरू करते। सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले 100% कॉन्सेंट्रेशन इधर। अब जो ड्रॉ करते डायग्राम सब कुछ छोड़ो, इधर ध्यान। concentration required, you can see we would like to apply junction rule. So you can see in this entire diagram, this one is the junction, this is also junction, because here 1 2 3 1 2 3, so 3 more than 2 conductors are meeting at this point B, and more than 2 conductors are meeting at point D, so B and D simply junction. Let at this point B potential is X, एंड लेट एट दिस पॉइंट डी पोटेंशियल क्या होगा। तो ये देखो यहाँ पे ये बैटरी को अच्छी तरह मिक्स करो, ये पॉजिटिव पोल है नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल का पोटेंशियल मैंने बताया 10 वोल्ट होता है, ये 10 वोल्ट प्लस 10, और नेगेटिव का 0 वोल्ट। तो नेगेटिव पोल ऑलवेज एट 0 वोल्ट, तो डी नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, इधर भी डी नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट 0, सॉरी एट डी, इट इज 0 वोल्ट, एंड वी हैव कंसीडर्ड पोटेंशियल एट पॉइंट बी सपोज x वोल्ट। आप वी भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। So अब ये पॉइंट देखो, point A already in contact with positive pole, so what is the potential at point A? It is 10 volt. At C, what is the potential at point C? Now try to understand yourself. Potential at point C, so C already you can see in contact with positive pole of the battery. Whatever the point is in contact with positive pole of the battery, at that point always total potential of the battery, it means total potential 30, so इधर होगा 30 वोल्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव, तो 0 वोल्ट। यू कैन से पहले तो ये पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन, जंक्शन रूल अप्लाई करना हो, KCL अप्लाई करना हो, तो यही पहले करना पड़े, क्योंकि करंट को ड्राइव पोटेंशियली करने वाला। अब देखो ये बैटरी में से करंट निकला,
ये इस तरफ जा रहा है, सपोज दिस इज योर I1। इसी तरह सेकंड बैटरी में से करंट निकला, दिस इज योर I2। और ये दोनों करंट देखो पॉइंट बी के पास मिलके इस तरफ फ्लो हो रहा है, दिस इज योर I दैट मीन्स I1 प्लस I2 यू कैन सी, और इधर इस तरफ वापस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो हियर one point is clear, total current passing through this 3 ohm resistor is I, it is the summation of I1 I2, but check the junction, we would like to apply junction rule. So once again we'll start as per junction rule, इनकमिंग देखो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में लिखता था इनकमिंग चार्ज, इधर लिखेंगे इनकमिंग करंट एट जंक्शन बी is equal to total outgoing current from junction B. ready? So junction B के पास, तो चलो इनकमिंग करंट कितना है I1 और I2, so I can write simply I1 plus I2, and what is the outgoing current? outgoing current I। आप ऐसा ना लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, I is equal to I1 plus I2, डोंट वरी, मगर अपन लोग इस तरह जाते ताकि थोड़ा पता चले, बाकी कुछ है नहीं, तो धीरे धीरे मास्टरी आई जाने वाली है। So here see 30 volt at this point 30 volt. Okay, start. I1 simple Ohm's law. What's the we can say that formula for current? अभी मैंने आज बताया, हमने लास्ट टाइम भी देखा, करंट दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यानी V by R, यू नो दैट सिंपली Ohm's law। तो चलो फर्स्ट I1 के लिए अप्लाई करते हैं। I1, ये I1 इस ब्रांच में से पास हो रहा है, देखो ये ब्रांच, यानी ये रजिस्टर में से, तो ये रजिस्टर के दोनों एंड्स को पकड़ो, ये रजिस्टर का एंड, आपको रजिस्टर ही देखना है बिल्कुल, अब जो मैं देने जा रहा हूँ देखना, ये रजिस्टर है, उसके दोनों एंड्स को खास चेक करो, ए और बी, ए और बी, तो बस ये दोनों के बीच का पीडी, इधर ए के पास पोटेंशियल है 10 वोल्ट, जस्ट चेक इट 10 वोल्ट, बी के पास पोटेंशियल हमने कंसीडर किया है x वोल्ट, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है I1, और इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो I1 का फॉर्मूला होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पीडी अक्रॉस ए बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए बी ब्रांच। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए 10 वोल्ट, पोटेंशियल एट पॉइंट बी एक्स। तो अपन लोग अब डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं, I1 मैं इधर लिखता हूँ वापस, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, व्हाट इज I1, सो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, अगर I1 किस ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, AB, यू कैन सी, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो A का 10 वोल्ट है, B का x, सो 10 माइनस x, सो 10 माइनस x अपॉन रेजिस्टेंस 6, यू कैन सी, बस यही करना है। अब अपन लोग I2 फाइंड करें, प्लस I2, तो I2 कौन सी ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, जस्ट चेक इट, CB, सो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CB अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये दोनों का PD होगा 30 माइनस x अपॉन रेजिस्टेंस है 3। कोई बोले सर x माइनस लिखा होता तो भी चलता है, तो x माइनस 10 अपॉन 6, x माइनस 30 अपॉन 3, क्योंकि मैंने ऐसा लिखने का रीजन है, देखो करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, A टू B, करंट फ्लो हो रहा है A टू B, दैट मींस A एट हाई पोटेंशियल, B एट लो पोटेंशियल, इसलिए A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल। इधर देखो करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, C टू B, दैट मींस C टू B करंट फ्लो हो रहा है, मतलब C एट हाई पोटेंशियल, B एट लो पोटेंशियल, इसलिए 30 माइनस x। आप इस तरह लिखते हैं, अभी बता दो बाद में, इज इक्वल टू I, चलो I यानी कौन सी ब्रांच, BD, तो जो ब्रांच में से करंट I फ्लो हो रहा है उस ब्रांच का PD, तो इधर पोटेंशियल है x और इधर पोटेंशियल है 0, सो x माइनस 0 अपॉन व्हाट इज द वी कैन से दैट रेजिस्टेंस 3, रेडी। तो अब इसको सिंपलीफाई करें, सो 10 माइनस x प्लस, इधर अपन लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि LCM, सो इधर 60 माइनस 2x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 आ जाए 2x, ओके, सो 10 प्लस 60 70 माइनस x माइनस 2x माइनस 3x 2x, सो 70 इज इक्वल टू 5x, so x is equal to 70 divided by 5, so what's the answer of 70, 14 5 ja, so here you can see that 14 volt, this is your we can say that potential difference। अभी भी देख लेना 10 minus x 6
10 minus x divided by 6, 30 minus x divided by 3 and x minus 0 divided by 3 you can see. अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं इसका जो 40 वोल्ट है इधर 40 मिल गया, अब इसका करंट फाइंड करना है. सो व्हाट इज द वी कैन से दैट करंट थ्रू बीडी ब्रांच. चलो बीडी ब्रांच का करंट यानी IBD, करंट का मतलब वापस के एक ज गुण करना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टर. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD, इधर B का पोटेंशियल x, D का पोटेंशियल 0. सो x माइनस 0 इधर है, डोंट वरी, डिवाइड बाय 3. सो x है 14 डिवाइड बाय 3 एम्पियर. दिस इज योर आंसर. चेक इट. अपने आप पहले एनालिसिस करो फिर वापस समझाता हूं एक बार. रेडी? तो वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन यू सॉल्व इट. इसको सोल्व करने का फंडा, सबसे पहले ऐसा कोई भी डायग्राम दे. देखो ये क्वेश्चन सोल्व करने के अलग अलग तरीके, मैं सभी तरीके समझाने वाला हूँ, डोंट वरी. आपको सिंपल फिर इसमें से जो इजी लगे वो उठाने का. मेरे मुताबिक सबसे इजी है जंक्शन रूल. कभी कभार जंक्शन रूल है वो अप्लाई ना हो, जंक्शन रूल के लिए ऐसे जंक्शन सर्किट में होने चाहिए. इसको नोड भी कहते हैं, इसके ऊपर से नोडल एनालिसिस भी ये कहा जा सकता है. मगर जंक्शन रूल ज्यादातर ऐसे जंक्शन वाले पॉइंट में बहुत इजी रहेंगे. कुछ जगह पे अपन लोग लूप रूल अप्लाई करेंगे और कुछ जगह पे जिसे कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट बैटरी रूल, जो हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, सब पता चलेगा, डोंट वरी. पहले इसको सोल्व करने का फंडा, वी वुड लाइक टू फाइंड करंट थ्रू बीडी ब्रांच, डोंट वरी. तो पहले बी है वो जंक्शन है, वहां पे हमने पोटेंशियल कंसीडर कर लिया x वोल्ट. डी है वहां पे 0 वोल्ट, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव डी के साथ है, बैटरी का नेगेटिव तो डी के पास 0. ओके, तो अपन लोग अब जिसे कह सकते हैं, इसका मतलब है कि बी है वहां पे टोटल करंट आ रहा है, वो डी ग्राउंडेड है, यहाँ से करंट ग्राउंड हो जाता है. इन शॉर्ट बी के पास करंट आएगा कहाँ से, तो ए बैटरी में से I1 करंट, ए बैटरी में से I2 करंट. ए पॉइंट बी के पास I1 और I2 कंबाइन होते हैं और I1 I2 इधर से ऐसे कंबाइन होके इस साइड जाएंगे, तो I इज द समेशन ऑफ I1 एंड I2. तो पॉइंट बी के पास जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं. व्हाट इज द जंक्शन रूल, व्हाट इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ क्या था, एट जंक्शन द टोटल करंट, देखना ये भी मोस्ट टाइम जब मैं इसके मुताबिक सॉल्व कराऊंगा, टोटल करंट एट जंक्शन ऑलवेज इक्वल टू 0. याद करो, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स एट जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि देखो ये I1 आया, ये I2 आया, इधर कंबाइन होके आ गया. तो सबसे पहले अपन लोग लिख सकते हैं I1 plus I2 इनकमिंग करंट एंड I is the outgoing current. That means current entering the junction, current leaving the junction. चलो I1 जिसे कह सकते हैं, पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए, ये पॉइंट ए के पास जिसे कह सकते हैं 10 वोल्ट है और पॉइंट बी के पास x वोल्ट, तो 10 माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस 6. सो 10 माइनस एक्स अपॉन 6. इसी तरह ए ब्रांच में I2 है, तो C to B, C के पास पोटेंशियल 30 वोल्ट, B के पास पोटेंशियल x. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन CB, 30 माइनस एक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, 30 माइनस एक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. और अब बचा I, तो I इसमें से फ्लो हो रहा है. सो पोटेंशियल एट पॉइंट B अपॉन पोटेंशियल एट पॉइंट D, पोटेंशियल एट पॉइंट B x, पोटेंशियल एट पॉइंट D 0. सो x माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, सो x माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 3. इसमें मैथमेटिकली इधर कुछ भी हुआ तो यानी कि कैलसी में कोई प्रॉब्लम हो गया तो जरा चेक कर लेना, क्योंकि मेन कंसेप्चुअल पॉइंट ये है, ये सीखने का है. बाद में हमने देखो एलसीएम ले लिया, इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 10 माइनस एक्स, 32 जा 60 माइनस 2x सिंप्लीफाई, 10 प्लस 60 70 माइनस 3x इस साइड. सो आंसर 40 वोल्ट. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी, इट इज 40 वोल्ट. तो 40 वोल्ट है, उसके मुताबिक जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग शुरू करें, तो हाउ कैन यू फाइंड, वी कैन से दैट पोटेंशियल रिलेटेड डिफरेंस मिल गया, इसके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं 40 माइनस 0. तो इसका करंट मिल जाए, करंट थ्रू बीडी ब्रांच x माइनस 0 अपॉन 3, 40/3 एम्पियर. रेडी? अगर इधर जिसे कह सकते हैं कि 15 वोल्ट देते हैं, एक और ऐसा करेक्शन, क्योंकि ये बहुत ही फेमस ब्रांच, तो इधर 15 लेते हैं.
तो इधर जिसे कह सकते हैं कि 15 माइनस एक्स आता है, यू कैन सी 15, तो इधर 15 60 तो 75 हो जाता है, तो इधर 75 तो 75 डिवाइड बाई 5 तो 15 वोल्ट हो जाता है, सो 15 डिवाइड बाई 3 तो 5 एम्पीयर आ जाता है। तो ये कुछ भी डेटा तो मैंने इधर उधर चेंज किया है, मगर ये प्रैक्टिस अपने को अब शुरू करनी है। इसके जैसा एक और, चलो देखते रहना, मैं ट्राई करूँगा, डोंट वरी, उसके बाद आपको अपने आप ट्राई करना है। अब देखो जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो कभी कभार जिसे कह सकते हैं इस तरह इजी फॉर्म में ना भी दे, अलग तरीके से दे, मगर होगा यही। देखो अब जो क्वेश्चन है वो अपन लोग डिस्कस करते हैं। देयर इज अ बैटरी ऑफ 4.5 वोल्ट, देयर इज अ रेजिस्टर, this type of diagram given, you can see here 10 ohm resistor, this is the 4.5 volt battery, there is, you can see that 3 volt battery, 6 ohm resistor, and I think here 5 ohm resistor, you can see, check it, sorry there is 3 ohm. So what's your target? Find current passing through this, we can say the 6 ohm resistor, this is your target, find करंट पासिंग थ्रू 6 ओम रजिस्टर। चलो ये फाइंड करना है। सबसे पहले मैं यही वापस मैं ही सॉल्व करवाता हूँ, बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। सो वंस अगेन दिस इज योर जंक्शन एक्स, दिस इज ऑल्सो जंक्शन यू कैन सी वाई। तो इसको अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट करना तो भी कर सकते हैं। सबसे पहले जिसे कह सकते हैं कि ये बैटरी ड्रॉ करते हैं, यू कैन सी बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव पोल है वो एक्स के साथ, तो ये रहा एक्स, मगर x 3 ओम के साथ है, तो x देखो 3 ओम, x ऑलरेडी 3 ओम एंड 3 ऑलरेडी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब ये 4.5 आ गया। ये कुछ लोगों को ऐसे नेटवर्क ना समझ में, इसके लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी हो सकता है, मगर अपन लोग थोड़ा ऐसे जाते हैं। x2 अब देखते हैं, और 3 वोल्ट बैटरी, 3 वोल्ट बैटरी का ये रहा 3 वोल्ट बैटरी, वो 10 ओम थ्रू x के साथ है, तो 10 ओम, और देखो ये पॉइंट x के साथ आ गया इधर, और ये 10 ओम, और ये 3 वोल्ट बैटरी। अब y देखो, y के साथ 3 वोल्ट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, y के साथ 4.5 वोल्ट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो दोनों बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल है वो y के साथ कनेक्ट है। तो ये 6 ओम तो रह गया, तो 6 ओम x और y के बीच में, तो x और y के बीच में 6 ओम। देखो पहले जैसा सर्किट हो गया। अब इधर का पोटेंशियल हमने ले लिया सपोज x वोल्ट, इधर होगा 0 क्योंकि ये 0 इधर है, इधर भी 0। व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, एनीबॉडी? सो ये देखो पॉजिटिव है तो 3 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट? तो ये 4.5 के साथ है तो 4.5। चलो रेडी। अब अपन लोग शुरू करते हैं, यहाँ से करंट जाएगा यहाँ पे। अब मैं थोड़ा अलग तरीके से, सपोज अलग तरीके से मतलब the total current at point x always equal to 0। चलो अब इनकमिंग और आउटगोइंग है वो छोड़ देते हैं और समेशन ऑफ करंट में जाते हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही होगा। तो अपन लोग सबसे पहले इनकमिंग करंट है या आउटगोइंग करंट है उसको गोली मारो। ये देखो I1 है या I2 है और इसमें से I, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग जानते हैं एज पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, as per KCL, Kirchhoff's current law, as per junction rule, you know that very well, the algebraic sum of all currents at the junction always equal to 0। What is the junction? X। तो X के पास टोटल करंट 0 होगा। तो अब करंट, 3 करंट तो है, 1 2 3, ये तीनों 3 का समेशन शुरू कर देते हैं। तो करंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैं शुरू करता हूँ, देखो पहला करंट x माइनस 4.5, so x minus 4.5 upon x minus 4.5 upon resistance 3, ये पहला करंट आ गया इसका। अब इस ब्रांच का करंट, तो इस ब्रांच का करंट जिसे कह सकते हैं कि I2 है, और इधर 3 और इधर x, मगर अपन लोग एक ही पॉइंट में जाएंगे, x minus 3 upon resistance 10 प्लस, अब ये ब्रांच रही देखो, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा x minus 0 upon resistance 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो ये इनकमिंग आउटगोइंग का बदले मैंने दूसरा मेथड लिया, कोई बात नहीं, सब कुछ सेम है, आप इनकमिंग आउटगोइंग थ्रू भी जा सकते हो, मगर ये भी इजी रहेगा। तो जंक्शन के पास टोटल करंट 0, तो जंक्शन को हीरो बना दो, जंक्शन का पोटेंशियल x
x माइनस 4.5 डिवाइड बाई 3, x माइनस 3 डिवाइड बाई 10, x माइनस 0 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0 फिक्स। तो अब इसका जिसे कह सकते हैं कि अपने को सोल्व करना हो तो पहले अपन लोग जानते हैं कि सिंपली एलसीएम है वो डिस्कस करें तो कितना एलसीएम निकलेगा। देखो सबसे पहले इधर 10 और 6 है और 3, 10, 6 का एलसीएम निकाल ले ऐसा हो तो अपन लोग जानते हैं कि पहले 3 से शुरू करें 1, 10 और 2 और 2, 1, 5, 1, 5, 5 टू 10, 10 3 जा 30 एलसीएम निकाल लेते हैं। ये देखो ना सेटल हो तो ऐसा कर देने का बिंदास। सो 30, सो इसको जिसे कह सकते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करें सो 10x माइनस 45 हो जाए डायरेक्ट। यू कैन सी इधर नीचे डिनोमिनेटर 30 लाने के लिए 30 और ये 30 में लिख रहा हूँ लोगों को समझ में इसलिए, वरना कुछ लोग बोले 30 किधर गए, ये 10 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अब इसको इधर जिसे कह सकते 3 से सो 3x माइनस 9 डिवाइड बाई 10 सॉरी 30 और इधर 5 सो 5x माइनस 30 सॉरी डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट अपन लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 10x माइनस 45 3x माइनस 9 प्लस 5x 0। तो ये कुछ लोग सीधा भी लिख सकते हैं जिसका मैथमेटिकल कंसेप्चुअल पॉइंट बहुत ही इजी और बेस्ट हो। अब देखो 10x प्लस 3x प्लस 5x दैट मींस 8x। अब माइनस 45 माइनस 9 यानी 54 इज इक्वल टू 0। सो 18x 54 सो व्हाट इज योर x 3 वोल्ट यानी इधर पोटेंशियल होगा 3 वोल्ट। ओके अब तो करंट फाइंड करना है। व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम। सो करंट थ्रू 6 ओम दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम डिवाइड बाय 6। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। तो 6 ओम के दोनों एंड्स चेक करो, इधर x है इधर 0 तो x माइनस 0 डिवाइड बाय 6 मगर वो तो इधर है ही अपने पास फिर भी और x 3 है सो 3 बाय 6 यानी कि 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू दिस 6 ओम रजिस्टर। देखो तो ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। वापस थोड़ा मैंने मेथड अलग किया ना, ये सेम ही है मगर डायग्राम थोड़ा अलग दिया था। अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो आपको अपने आप ट्राई करना है और उसका आंसर मुझे बताना है। हर एक बंदा है वो ट्राई करे 100%। देख लो बराबर यहाँ पता चले तो जंक्शन को पकड़ो, जंक्शन से शुरू करो, जंक्शन का पोटेंशियल x, जंक्शन के पास टोटल करंट 0 तो जंक्शन के साथ कितनी ब्रांचेस जुड़ी हुई 1 2 3 तीनों 3 का करंट का समेशन 0 है तो तीनों 3 करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। चलो ये ब्रांच का तो x माइनस 4.5 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, x माइनस 3 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, x माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। रेडी ओके सो नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन है वो अपने आप ट्राई करना है। हर एक बंदा इसका आंसर मुझे देगा। पेन नोटबुक साथ में रखने का मैंने बोला है सो बी अलर्ट अबाउट इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन। there is a 20 volt, there is a 10 volt, this is S, S is the switch, you can see, and there is a 2 ohm resistor, then next point here 2 and 4 ohm. So what is the question? When switch is closed then find current I1 लो, ऐसा क्वेश्चन दिया है। स्टार्ट। अब स्विच यानी ये डराने के लिए दिया है, स्विच जैसे ही क्लोज हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यू कैन सी नथिंग। अब तो आप जानते हो। और ग्राउंड का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट। ये तो सबसे इजी में इजी क्वेश्चन दे दिया, राइट। ओके सो कुछ लोगों ने बहुत फास्ट क्वेश्चन सोल्व किया होगा। सबसे पहले जंक्शन, यहाँ पे पोटेंशियल x
तो शुरू करते हैं। x के पास जो भी करंट होगा उसका टोटल समेशन है सिग्मा आई एक्स 0। चलो शुरू। तो x माइनस 20 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 2 प्लस, अब इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 10 डिवाइड बाई 4 प्लस, अब ये ब्रांच का x माइनस 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो जंक्शन का पोटेंशियल फाइंड करने का फंडा, तो इधर 2 है, इधर 2, इधर 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 40, रीजन पता चला, एलसीएम 2 4, इधर तो 4 है ही, x माइनस 10, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो 0। ओके, सो 2x प्लस x प्लस 2x दैट मीन्स 5x minus 40 minus 10 minus 50. So what is your x? 50 divided by 5. So x obviously 10 volt. Ready? So what is the potential at this point? x 10 volt. तो अपने को फाइंड करना है करंट थ्रू दिस 2 ओम रजिस्टर, क्योंकि I1 क्या है, करंट थ्रू दिस 2 ओम पूछा, I1 का मतलब वही। सो I1 इज इक्वल टू व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट, x minus 0 divided by 2. What is your x? X polarity we have found 10 divided by 2. So what is your current? 5 ampere. You can see this is the most timely question. कोई बोले ये क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी JEE 2019 का क्वेश्चन है, डोंट फॉरगेट। आप देख लो JEE 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन हमने सोल्व किया। अब ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने का पता चला। ये तो अभी हम लोग लोअर स्कूल लेवल में धीरे धीरे लेवल बढ़ाने का शुरू करते हैं। तो ये पहला पार्ट हमने डिस्कस किया जो बेसिक्स है। अब ये पार्ट के बाद वापस ये पार्ट को अच्छी तरह देख लो 20-25 मिनट में, और फिर पार्ट 2 इसलिए इम्पोर्टेंट है 7-8A के बाद 8B, क्योंकि इसके बाद अपन लोग इसमें अपर सेगमेंट में जाने वाले हैं। और पार्ट B है वो अगर आपने बराबर समझ लिया और कर दिया, मतलब आज अपन लोग है इस टाइप के क्वेश्चन में मास्टर। तो पार्ट बी में अपन लोग इसके ऊपर अपर सेगमेंट का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, एनालाइज पार्ट ए 8A and think about all concept of Kirchhoff's first law. Okay, we'll meet in part B.